Hello students, how are you? I hope you will be fine. Students, today we will discuss unit number 8 D and F block elements, and in D and F block elements we have discussed about transition elements or D block elements. In today's session we will discuss about F block elements, and in F block elements we will discuss lanthanoids and actinoids. So let's start. In today's session, we'll see the introduction of lanthanoids, oxidation state of lanthanoids, general characteristics, lanthanoid contraction, and some chemical properties. After lanthanoids, we will see oxidation state of actinoids, general characteristics, and the difference between lanthanoids and actinoids. So these topics will be discussed in today's session. So let's start. First, we will see the introduction of lanthanoids. So in introduction of lanthanoids which are from La to Lu. In periodic table you see the atomic number 57, that is La, lanthanum. So from 57, just after 57, the atomic number is 72, that is hafnium. So where are the elements from 52 to from 58 to 71? Where are these elements? So you see, these elements are known as lanthanoids. Lanthanoids, why? Because their leading element is lanthanum, La. So you see at the bottom of the periodic table there are two series. First is 4F series and last is 5F series. 4F series, it starts from cerium Ce to lutetium Lu, and the second series, that is 5F series, it starts from actinium, okay, means it starts from thorium to lawrencium Lr. So the leading elements are lanthanum and actinium. That's why these are known as lanthanoids and actinoids. So in lanthanoids, since the properties of lanthanum, it is closely related to rest of the lanthanoids, so it is also included whenever we discuss about the chemical properties or physical properties of lanthanoids. So in simple words, lanthanoids, it starts from lanthanum, atomic number 57, to lutetium, atomic number 71. Okay, and similarly, yeah, one more thing, the symbol of lanthanum, it is La. Okay, symbol of lanthanum is La, but the symbol of lanthanoid, it is Ln. So Ln means lanthanoids. Okay, so make this thing clear. Ln, it's not a symbol of any element, it is the symbol of a group. Okay, and which group? Symbol of lanthanoids. Similarly, actinium is included in any discussion of the actinoids. Why? Because actinium, it shows similarities in physical properties and chemical properties in with the rest of the elements. The chemistry of actinoids is much more complicated. Okay, the complication arises partially owing to the occurrence of the wide range of oxidation states in these elements, and partly because of their radioactivity creates a special problem in their study. So in simple words, see, we can see or we can observe the reactivity, chemical properties, physical properties of lanthanoids very easily, but the study of actinoids, it's quite complicated. Note down this question. The chemistry of or the study of actinoids, it is not smooth. Why? This question is asked in exam. So the question is, again I am repeating, the study of actinoids, it's not smooth as compared to lanthanoids. Why? So the reason is, actinoids, they show similarities in chemical properties with each other. All the actinoids, they have same chemical and physical properties. Okay, and also all the actinoids, these are radioactive.
Radioactive means it's quite dangerous. So these are radioactive substances. That's why there is study, it creates problem. So the answer is the study of actinoids. It's not easier, it's not smooth because of the wide range of oxidation states, and also and also the actinoids, these are radioactive, and their radioactivity creates problem in the study of these elements. We have to take special care while we are studying the chemical properties of actinoids. Okay, now we will see electronic configuration. So in electronic configuration, you can see in this table the atomic number from 57 is lanthanum. So lanthanum, cerium, praseodymium, neodymium, promethium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutetium. These are the name of elements and the symbols are given. Okay. Now see electronic configuration. First, the electronic configuration of lanthanum, it is 5d1 6s2. Okay. Xenon it has atomic number 54. So after xenon, now it will come 5d1 6s2. That's why lanthanum is added in d block element, because last electron it is entering in 5d, and if electron enters in d orbital, then it is d block element. After lanthanum, the next electron, this electron is entering in cerium in 4f orbital. You can see the configuration 4f1 5d1 6s2. Here from the configuration it is clear that the last electron is entering in 4f orbital. Okay, praseodymium 4f3 6s2. Now d orbital, it is not its electron is shifting into cerium, from cerium praseodymium. So shift into praseodymium, configuration is 4f3 6s2, 4f4 6s2, 4f5 6s2, 4f6 6s2, and europium. So now see, in europium the atomic number is 4f, configuration is 4f7 6s2. This is quite stable configuration because s orbital is fulfilled and f orbital it is partially filled. The capacity of f orbital, it is 14, and half of 14 it is 7. So this is half filled. So this element is quite stable. So note down this element europium. This one is quite stable. After europium, the next electron enters in 5d. Why 5d? Because 4f is already stable. So that's why the electron will enter in d orbital to make it stable. But after gadolinium, the next element it is terbium. So in terbium, the next electron is entering in again f orbital. Why? Because d orbital it is unstable and one more electron is added, then electron will enter in f orbital. So it's now 4f, it will become unstable 4f8. So in place of 4f8, the configuration will be 4f9. So this is 4f9 6s2, 4f10 6s2, 4f11 6s2, and so on. And at last 4f14 6s2, this one is fully stable and the maximum capacity of f orbital it is fulfilled. So that's why the electron will enter in now d orbital, that is 5d1. So you see lanthanum 5d1 6s2 and lutetium it is 4f14. So from cerium to lutetium we say that electron is entering in 4f orbital. That's why these are f block element and the series is 4f series. Last electron now it is entering in 5d orbital. So again after lutetium, the next electron will enter in 5d, that will be 5d2. So that's why the next element is hafnium. So hafnium is added into d block element. ठीक है, समझना क्या है, सिंपल सा चीज समझना है, इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है लैंथेनम में, d ऑर्बिटल में,
तो इस लैंथेनम को कहाँ हमने लिखा है, डी ब्लॉक एलिमेंट में। बट लैंथेनम के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, एफ ऑर्बिटल में गया, तो ये हो गया एफ ब्लॉक एलिमेंट। फिर लास्ट में ल्यूटीशियम, ल्यूटीशियम में इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, डी ब्लॉक में चला गया, शिफ्ट हो गया क्योंकि एफ की कैपेसिटी फुल हो गई। अब इसके बाद ल्यूटीशियम के बाद कहाँ जाएगा, हैफनियम में, ये अब डी ब्लॉक में जाएगा, तो ये हैफनियम को किस में डाला, डी ब्लॉक में। तो लैंथेनम में आफ्टर लैंथेनम सेरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक इन सबको कहाँ रखा है, 4f सीरीज में, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है, 4f में। अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, आयन का कन्फिग्रेशन देखना है। तो लैंथेनम एलन, एलन मतलब लैंथेनम, सॉरी लैंथेनॉइड, तो लैंथेनॉइड्स में आप लैंथेनम का कन्फिग्रेशन देखिए 5d1 6s2, यदि ये 2+ बनाता है तो s में से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, क्या बचेगा 5d1 और 4f 0 रहेगा। सेरियम में कन्फिग्रेशन क्या बचेगा 4f1, ठीक है 2+ में, तो उसके बाद फिर क्या होगा, अब ये 4f2 में हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा 4f में शिफ्ट कर जाएगा, तो 4f2 हो गया, फिर 4f3 है सो ऑन। तो लास्ट में धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप टेबल में नीचे जाएंगे यूरोपियम में आते हैं। यूरोपियम में क्या हो रहा है 4f7, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है सबसे ज़्यादा स्टेबल। तो यूरोपियम में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। गैडोलिनियम, इसमें भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट उतना स्टेबल नहीं है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि 4f तो हाफ फिल्ड है पर 5d पार्शली फिल्ड है, तो ये अभी स्टेबल नहीं है। लेकिन यहीं पर गैडोलिनियम में देखें आप तो 3+ यदि हम बनाते हैं तो 3+ बनाने पर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन s में से जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, d से, तो बचेगा क्या सिर्फ 4f7। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास, यहाँ से यदि हमने 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो बचेगा क्या 4f7, ये स्टेबल है, यहाँ पर ये स्टेबल है। तो यूरोपियम में स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2 और गैडोलिनियम में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3, ये स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करेगी, स्टेबिलिटी ये डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यदि फुलफिल है तो ये स्टेबल है। ऐसे ही आप देखो इट्रियम में, ये इटरबियम में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये फुलफिल दिख रहा है और यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में फुलफिल दिख रहा है ल्यूटीशियम। तो इटरबियम क्या करेगा, +2 इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है और ल्यूटीशियम में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल पर। ऐसे ही आप आते हैं सेरियम में, तो सेरियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो बचेगा 4f2, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बनेगा 4f1, तो अभी ये स्टेबल नहीं है। लेकिन यदि सेरियम में से 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल दो तो ये स्टेबल कन्फिग्रेशन हो गया 4f0। तो जब आप सेरियम में, अब ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिखाएगा +4, तो ये सेरियम एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो कि स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, कब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ऐसे ही हम देखें टर्बियम में, तो टर्बियम में क्या होगा, यदि आपने 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये 4f7 बचेगा, ये भी हाफ फील्ड स्टेबल है। तो सेरियम और टर्बियम ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। तो हमारे पास कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 +3 एंड +4, ठीक है। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बाद हम देखते हैं इसकी एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई को भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। एटॉमिक रेडियाई जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाएंगे, अब पीरियोडिक टेबल में आप देखो तो आप सेरियम से कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, ल्यूटीशियम में, लेफ्ट टू राइट। और सिंपल सा कंसेप्ट हमने पढ़ा है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है, ऑब्वियसली डिक्रीज होती है। बट यहाँ पर आपको रेंज देखना है, कितना डिफरेंस आ रहा है। जब एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है तो डिफरेंस नियर अबाउट 15 to 20 पिकोमीटर होता है। बट यहाँ पर देखो कितना डिफरेंस है। सेरियम के बाद कितना 182, ऑलमोस्ट सेम हो गया, एक का डिफरेंस, यहाँ ऑलमोस्ट सेम है, फिर 1 डिफरेंस है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया, ये सब ज़्यादा स्टेबल है। देखो यूरोपियम में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है 4f7 6s2, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए इसका एटॉमिक रेडियाई सबसे ज़्यादा है। फिर इसके बाद आओगे 180 78 77, तो अगेन ये क्या हो रहा है डिक्रीजिंग। तो इस कंडीशन में हम कंसेप्ट क्या निकालें, इन लैंथेनॉइड्स
when we move left to right, the atomic radii it is decreasing, but the decrease is very very small, or almost we can say that the atomic radii it is almost same, क्योंकि प्लस वन का डिफरेंस कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट सेम है। अब देखो आपको दो कंफ्यूजन पॉइंट मिलेगा। पहला पॉइंट क्या था, लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, और कितना डिक्रीज होता है, मोर देन 10 का डिक्रीज होता है। अब देखो इससे पहले जो हमने 16 ग्रुप एलिमेंट, 17 ग्रुप एलिमेंट, इन सब की आप कंपेयर करोगे पीरियोडिक टेबल में, इनकी रेडियाई आप देखोगे लेफ्ट टू राइट जाने पर, तो एटॉमिक रेडियस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन इसमें डिक्रीज तो होगी पर बहुत कम डिक्रीज है। यही होता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, द स्मॉल डिक्रीज और स्टेडी डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द लैंथेनॉइड, दैट इज नोन एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इस वर्ड को याद रखना, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही आप इसके आयन को देखो +3 में, तो +3 में भी जो आयनिक रेडियाई है ऑलमोस्ट सब में क्या मिल रही है, हमको सेम मिल रही है। तो एटॉमिक रेडियाई ऑलमोस्ट सेम है। यहीं से हम फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को। इन ऑक्सीडेशन स्टेट ये है हमारे पास एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स, तो हमारे पास जो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये हो गए एलिमेंट्स के नाम, ओके, और ये हो गया इनका कन्फिग्रेशन। अब इस कन्फिग्रेशन से हमको क्या बनाना है, Ln2+, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो ये हमने चलो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो क्या क्या बचेगा, अब आप इजीली इसको निकाल सकते हैं कि जब आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कन्फिग्रेशन क्या बचेगा। सीरियम में याद रखना, सीरियम में जब S में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 5D का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, F में, तो ये हो जाएगा 4F2। तो अब ये +2 में देखो आप स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्या क्या दिख रही है। इन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे सिर्फ 2 दिख रहा है, एक यूरोपियम, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल दिख रहा है मेरे को क्योंकि हाफ फील्ड है, और इट्रियम ये सबसे ज़्यादा स्टेबल दिख रहा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर इसके बाद हम बात करें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये देखिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन दिख रहा है, गैडोलिनियम, ये दिख रहा है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसके साथ साथ ल्यूटीशियम, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल दिख रहा है, लैंथेनम ये भी स्टेबल दिख रहा है। तो ये 3 एलिमेंट्स जो कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे ज़्यादा स्टेबल हैं। और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो +4 जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे इसकी, तो इसमें आप देखोगे सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन दिख रहा है, अब इसमें दिख रहा है सीरियम सबसे ज़्यादा स्टेबल, और टर्बियम ये सबसे ज़्यादा स्टेबल दिखेंगे। तो इन्हीं चीज़ को आपको नोट डाउन करना है कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन सा एलिमेंट स्टेबल है। तो यहाँ हमारे पास 3 ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, +2, +3 एंड +4। इनमें कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। चलिए अब हम ये डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट कॉमन एंड स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो लैंथेनॉइड में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इनमें यहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या, +2 एंड +4 ions in solution or in solid compounds are also obtained। ऐसा नहीं है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बस मिलेगा, +2 और +4 भी मिला है, लेकिन किसमें मिला हमको, द फॉर्मेशन ऑफ CeF4 इज फेवर्ड बाय इट्स नोबल गैस कन्फिग्रेशन। नोबल गैस कन्फिग्रेशन क्यों, क्योंकि सीधा सा है, जीनॉन का एटॉमिक नंबर है 54, जीनॉन एक इनर्ट गैस है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 54, और सेरियम का एटॉमिक नंबर है 58। तो यदि 58 में से 4 इलेक्ट्रॉन आप निकाल देंगे तो कितना बचेगा 54, ये हो गया जीनोन का कन्फिग्रेशन। तो सेरियम यदि ये +4 बना रहा है तो ये क्यों बना रहा है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो किसके इक्वल हो गया, नोबेल गैस के। तो यहां से हमारे पास क्वेश्चन आ गया, विच एलिमेंट, विच डी ब्लॉक लैंथेनॉइड, विच एलिमेंट shows +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, आंसर विल बी सेरियम। फिर ऐसे ही प्रेशोडिमियम, ओके सॉरी नॉट प्रेशोडिमियम, प्रोमेथियम, नियोडिमियम, टर्बियम एंड डिस्प्रोशियम, they also exhibit +4 oxidation state
इनमें भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी। ठीक है, अब इस +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या दिखना है, बट ओनली विद द ऑक्साइड्स MO2। MO2 मतलब M हो गया मेटल, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं प्रोमेथियम का, तो ऑक्साइड क्या बनेगा PrO2। इसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। यहाँ हमने डी ब्लॉक में डिस्कशन किया था कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वो कब दिखाएगा, वो दिखाएगा सिर्फ ऑक्साइड्स और फ्लोराइड्स के साथ। तो ये किसके साथ दिखाएगा, ऑक्साइड्स के साथ। तो ये आपका क्वेश्चन एक नोट डाउन कर लेंगे कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन दिखाएगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सेरियम। ठीक है, देन यूरोपियम Eu2+ is also formed by losing 2 s electrons। ओके, यहां से क्या होगा, 2 s इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा एंड इट्स F7 कॉन्फ़िगरेशन। आप देख सकते हैं यूरोपियम में कहा, ये आ गया, देखो यूरोपियम। Yb2+ which has 4f14 कॉन्फ़िगरेशन। Yb इटरबियम देखो, इसमें भी +2, यदि आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो F14 ये स्टेट मिलेगा। ये देखो प्रोमेथियम का हो गया, ये न्यूडीमियम हो गया, और ये टर्बियम हो गया, ये ऊपर वाला ये हो गया। हमने कौन से पॉइंट की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे हैं ये सेकेंड पॉइंट की। इस पॉइंट में देखो ये हमने ब्लू टिक से एलिमेंट्स को डिस्कस शो कर दिया कि कहाँ पर क्या दिखा रहा है। अब हम क्या दिखा रहे हैं यूरोपियम में, तो यूरोपियम में कहाँ दिख रहा है, ये दिख गया यूरोपियम, ये रेड डॉट हो गया यूरोपियम का, और उसके साथ ये हो गया हमारे पास इटरबियम। तो यहाँ पर हमारे पास अब क्या मिलेंगे, 2 रेड डॉट्स मिल रही हैं। ये रेड डॉट्स क्या शो कर रही हैं, यूरोपियम एंड इटरबियम। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है उसको हमने शो कर दिया। और लास्ट है टर्बियम, TbF4। तो टर्बियम में यदि TbF4 बनाते हैं तो भी ये स्टेबल है। आप देखो टर्बियम कहाँ है, ये है टर्बियम, तो ये भी क्या दिख रहा है +7, तो ये स्टेबल दिखाएगा। तो अब इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं हम एक एक करके। +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये कहाँ मिला हमको, +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ से दिख रहा है +2 एंड +4। आफ्टर दैट फॉर्मेशन ऑफ CeF4, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये क्यों फेवर कर रहा है, क्योंकि इसमें 4f0 हो जाएगा, कन्फिगरेशन जीनोन की इक्वल होगा। प्रेसियोडियम, नियोडिमियम, टर्बियम एंड डिस्प्रोशियम, कहाँ पर, प्रेसियोडियम, नियोडिमियम, टर्बियम और डिस्प्रोशियम। इसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखती हैं, ये कंपाउंड्स दिख रहे हैं। जिसमें हमने कन्फिगरेशन लिखा है इसका मतलब उसके कंपाउंड बने हैं, और जिसमें कन्फिगरेशन नहीं लिखा है इसका मतलब उसमें कंपाउंड नहीं बना है। तो कंपाउंड किसमें बना, ये आप देख लिए इसमें से। Eu2+ की बात करें तो ये Eu2+ और Yb2+ ये कब बनेगा, बिकॉज ऑफ दिस 4f7 एंड 4f14 कन्फिगरेशन। सिमिलरली Tb+4, तो Tb+4 कहाँ मिलेगा, ये देखो Tb+4 बनाएगा तो क्या बनाएगा, ये 4f7, ये भी स्टेबल है। तो सेरियम और Db ये दोनों क्या बनाएंगे, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे। ठीक है, इन पॉइंट्स को नोट करना है और इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट से। ठीक है, आफ्टर ऑक्सीडेशन स्टेट्स नाउ we will see general so now the general characteristics all the lanthanoids, वो तो हमने इंट्रोडक्शन देखा था। अब हम देखेंगे इसके कुछ फीचर्स। all the lanthanoids are silvery white soft metal and tarnish rapidly in air। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो लैंथेनॉइड्स हैं, ये लैंथेनॉइड्स क्या रहेंगे, इनका तो कलर पहले ही आपको मालूम है, ये सारी की सारी मेटल्स हैं, और मेटल में सिल्वरी वाइट कलर इनका एक शाइन होती है, लस्टर होता है। तो लैंथेनॉइड क्या है, लस्ट्रस है, ये हमने फीचर्स में देख लिया था। बट इनको यदि आप एयर में एक्सपोज कर दें, ओपन करके छोड़ दें इनको, तो ये क्या होगा, इनमें इनकी जो सरफेस है वो क्या हो जाएगी, टर्निश हो जाएगी, इनकी साइन जो है वो साइन डल हो जाएगी। ठीक है, फिर देखते हैं हम सेकेंड, द हार्डनेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा इसका साइज छोटा होगा, साइज छोटा होने से स्ट्रेंथ, ये जो उसकी जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगी, हार्डनेस इंक्रीज होगी। और
मेल्टिंग पॉइंट, सो मेल्टिंग पॉइंट की रेंज क्या है, 1000 टू 1200 के बीच मिलेगा, ये इनकी रेंज है। बट समेरियम का जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है ये 1623, ये इतना क्यों है, इसका रीजन हम देखते हैं। तो ये देखिए समेरियम में एटॉमिक नंबर कितना दिख रहा है, समेरियम का एटॉमिक नंबर 62, इसका कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है हमको 4f6 6s2, मतलब ये स्टेबल है, इसलिए ये क्या होगा, इसका स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा। यूरोपियम इसका भी, तो कहीं कहीं हमको एक्सेप्शनल केसेस मिलते हैं, ठीक है। आफ्टर मेल्टिंग पॉइंट द नेक्स्ट पॉइंट इज La3+ एंड Lu3+ आयंस डू नॉट शो एनी कलर। अब देखो लैंथेनम में क्या होगा, एटॉमिक नंबर लैंथेनम का होता है 54 में से यदि हमने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, देखो कलर की बात करें हम तो कलर कैसे होगा, इन आयंस को याद रखना, La3+ एंड Lu3+। तो पहले इसका हम कन्फिगरेशन देखते हैं, ठीक है। कन्फिगरेशन कहाँ दिखेगा, तो ये दिखेगा कन्फिगरेशन, यहां पर आप देखो लैंथेनम में यदि हमने +3 स्टेट की बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, तो यहां पर हो गया 4f0 मतलब F में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जब इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कैसा होगा, कलरफुल होगा। यदि हम लैंथेनम 2+ की बात करें तो 2+ कलरफुल है क्योंकि D में एक इलेक्ट्रॉन है, बट 3+ ऐसा आयन बनेगा तो इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए क्या होगा, कलरलेस। इन द सेम वे ल्यूटीशियम को हम देखें तो ल्यूटीशियम में क्या होगा, यदि ये +2 बनाता है तो +2 में 4f14 मतलब 7 पेयर्स मिलेंगे, बट D में एक इलेक्ट्रॉन आपको सिंगल मिलेगा। तो ल्यूटीशियम क्या +2 ऐसा यदि हमको कंपाउंड मिलेगा जिसमें आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, +2 हो, तो ये कलरफुल होगा। लेकिन +3 में क्या होगा, +3 में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, तो फिर ये कलरलेस होगा। तो हमको कलरफुल और कलरलेस इन दोनों के बीच डिफरेंस समझना है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यदि सिंगल इलेक्ट्रॉन है, द कंपाउंड इट विल बी कलरफुल इफ इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ओके, एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड देन ओके नो प्रॉब्लम, but at least one electron should be unpaired, then it is colorful, and if all the electrons are paired it will be colorless. So lanthanum 3+ and lutetium 3+, these ions do not show any color because these ions do not have any unpaired electron. The lanthanoids ion other than the F4 type means La3+ and Ce4+, and the F14 type Yb2+ and Lu3+, all are paramagnetic. Once again, paramagnetism, so this magnetic behavior is shown by the elements which have unpaired electrons, and we have seen that in La3+ no any electron is unpaired, that's why it is diamagnetic. And except these few configurations 4f0 and 4f14, all the elements of the ions they will be paramagnetic. So now the question is Ce3+ and Ce4+, which one is paramagnetic and which one is diamagnetic? So see, cerium atomic number 58, so 58 में से यदि +4 बनाएंगे तो बचेगा 54, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, डायमैग्नेटिक। Ce+3 बनाएगा तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। तो इन पॉइंट्स को याद रखना है हमको, ठीक है। नाउ आफ्टर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, नाउ वी विल सी लैंथेनॉइड कॉन्ट्रिक्शन। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रिक्शन में ये समझना है हमको कि हम क्या बात करेंगे। इसमें हमें 3 पॉइंट नोट करना है। पहला पॉइंट क्या, लेफ्ट टू राइट जाएंगे एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, बट सेकेंड पॉइंट लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है, एफ ऑर्बिटल में, और एफ ऑर्बिटल कहाँ है, ये आउटर ऑर्बिटल तो है नहीं, ये तो इनर ऑर्बिटल है।
तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है? इनर ऑर्बिटल में, इनर सेल में। तो जब इनर सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सो ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट क्या है कि न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को ये रोक देते हैं। तो जब न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को रोक देंगे तो क्या लास्ट वाली सेल डिक्रीज होगी, उसका रेडियस कम होगा? रेडियस कम नहीं होगा, तो इसका एटॉमिक रेडियाई क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। ये सेकेंड पॉइंट है, ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट एटॉमिक रेडियाई इट शुड नॉट बी डिक्रीज्ड। थर्ड पॉइंट है कि शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, पुअर होने के कारण न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को ये ज्यादा नहीं रोक पाते। तो इन तीन पॉइंट्स का समरी क्या रहेगी? तीन पॉइंट्स कौन कौन से? इन चीज को अच्छे समझना। ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, दिस वन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? तो हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं, ये एग्जांपल से हम समझेंगे। सबसे पहले ये मैंने लिया न्यूक्लियस, जनरल कंसेप्ट है। पहला एलिमेंट जब आप लेंगे, ठीक है, तो जैसे ही आप एक इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे, अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है? 4f में एंटर कर रहा है। ये हो गया 6, ये हो गया 5, ये हो गया 4। इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है? यहाँ पर। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन हम इंक्रीज करेंगे तो न्यूक्लियस का पावर भी तो ज़्यादा होगा, प्रोटॉन भी इंक्रीज होगा। तो ये प्रोटॉन और आउटर मोस्ट सेल, इनके बीच में अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो ये डिस्टेंस क्या होगी? ये डिस्टेंस थोड़ी सी कम हो जाएगी। ये डिस्टेंस क्या होती है? कम। सो लेफ्ट टू राइट जैसे जाएंगे, ये डिस्टेंस क्या होती है? कम होती जाती है। क्यों कम हो रही है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है? इनर सेल में, प्रोटॉन इंक्रीज हुआ। ये पहला कंसेप्ट है। सेकेंड कंसेप्ट क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, कौन सा इलेक्ट्रॉन? हम बात कर रहे हैं 4f इलेक्ट्रॉन की। ये 4f इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को रोक देगा, ये बीच में स्टॉप कर देगा। बीच में स्टॉप करेगा तो न्यूक्लियस क्या आप बाहर वाली सेल को अट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या बाहर वाली सेल अंदर आ पाएगी? क्या उसका डिस्टेंस कम होगा? डिस्टेंस कम नहीं होगा। तो साइज क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। अब ये दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट है साइज डिक्रीज होना चाहिए, सेकेंड पॉइंट है साइज डिक्रीज नहीं होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि जो लैंथेनॉइड 4f ऑर्बिटल हैं, इलेक्ट्रॉन है, इनका शील्डिंग इफेक्ट कमजोर है, वीक है। शील्डिंग इफेक्ट मतलब ये न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को रोक नहीं पाता है, तो इसलिए न्यूक्लियस क्या करेगा? बाहर वाली सेल को अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब जो हमारे पास ये है रेडियाई है, वो रेडियाई इसकी डिक्रीज होगी। तो फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट पॉइंट भी कह रहा है रेडियस डिक्रीज होगी, थर्ड पॉइंट भी कह रहा है रेडियस डिक्रीज होगी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? डिफरेंस ये है, पहला वाला जो पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग रेडियस में कितना डिक्रीज होना चाहिए। तो देखो इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं हम। पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग ये पहला एलिमेंट और ये दूसरा एलिमेंट, तो देखो रेडियस कितना डिक्रीज होगा, यहां से आप कंपेयर कर सकते हो कितना डिक्रीज हुआ। ये नॉर्मल कंडीशन है। बट लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या कह रहा है? रेडियस तो डिक्रीज होगा बट शील्डिंग इफेक्ट कमजोर है, इसलिए रेडियस इंक्रीज भी होगा। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। तो अब ये देखना कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस क्या है? इस डिस्टेंस से ज्यादा है पर इस डिस्टेंस से कम है। तो इसका मतलब रेडियस तो डिक्रीज होगी बट कितना डिक्रीज होगी? बहुत कम डिक्रीज होगी। तो इसलिए हमने जो रेडियस देख रहा था 181, 181, 180, तो कितना डिक्रीज हो रहा है? बहुत कम डिक्रीज हो रहा है। बाकी आप ऊपर वाले ग्रुप्स में देखेंगे ना, तो 181 के बाद कितना आ जाएगा? 172 आ जाएगा। बहुत बड़ा डिफरेंस दिखता है। तो स्मॉल डिफरेंस इन इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई, दैट इज नोन एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सो नाउ सी the overall decrease in atomic and ionic radii with increase in atomic number due to imperfect shielding effect of one electron by another in the same subcell is called lanthanoid contraction. Okay, और इसको सिंपल लैंग्वेज में आप क्या लिख सकते हैं? the small decrease in atomic radii with increase in atomic number due to पुअर शील्डिंग इफेक्ट इज नोन एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या क्या लिख सकते हैं इसको? द पुअर डिक्रीज इन एटॉमिक और आयनिक रेडियाई विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर ड्यू टू इम्परफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट इज कॉल्ड लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सिर्फ इतना से लिखने से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। रीजन क्या है? तो रीजन हमने अभी डिस्कस किया। फर्स्ट रीजन, इन पीरियोडिक टेबल ऑन मूविंग अक्रॉस अ पीरियड atomic size decreases
in lanthanoid last electron enters in 4f orbital, hence due to shielding effect atomic size increases. ये दूसरा पॉइंट है. But shielding effect of 4f orbital is not much stronger, so atomic size increases regularly, but the net result is steady decrease in atomic size. पहला पॉइंट कह रहा है, क्या कह रहा है पहला पॉइंट, कि ये जो रेडियाई है ये कम होना चाहिए, बट दूसरा पॉइंट कहना है ज़्यादा होना चाहिए. तो एटमिक रेडियाई ये इतना कम होता, ये सेकंड पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग, बट सेकंड पॉइंट ये कह रहा है शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, तो ये एटमिक साइज इंक्रीज होगा. तो ये देखो स्मॉल डिक्रीज आएगा, वो है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रिक्शन. इसका इफेक्ट क्या देखें, तो इफेक्ट, इस इफेक्ट को आप नोट डाउन कर लेंगे. दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एटमिक रेडियाई ऑफ 3D एंड 4f सीरीज इज ऑलमोस्ट सेम. तो इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है, द एटमिक रेडियाई ऑफ 3D एंड 4f सीरीज एलिमेंट्स इज ऑलमोस्ट सेम. वाई? सो आंसर लिखेंगे ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रिक्शन. ये हमने डी ब्लॉक एलिमेंट में भी डिस्कस किया था. दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस स्टेटमेंट में दो हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. पहला पॉइंट क्या, व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रिक्शन, उसको लिखना है आंसर, रीजन समझना है, और रीजन के बाद इफेक्ट. ठीक है, इन पॉइंट्स को आपको नोट करना है. और नेक्स्ट इफेक्ट क्या होगा, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड्स आर सेम. अब देखो इस लैंथेनॉइड कॉन्ट्रिक्शन में आपने देखा रेडियस क्या हो रही है, रेडियस ऑलमोस्ट सेम दिख रही है हमको, है ना. तो जब रेडियस ऑलमोस्ट सेम होगी तो एटम का साइज क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा. और एटम का साइज सेम होने से क्या फर्क पड़ेगा, इफेक्ट ये पड़ेगा कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम रहेगी. तो सेम होने के कारण लैंथेनॉइड्स का सेपरेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. देखो किसी भी हम एलिमेंट या कंपाउंड को सेपरेट कैसे करते हैं, सेपरेट करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर. जैसे कि सॉल्ट एंड सैंड, दोनों के यदि हम सेपरेट करना चाहें तो डिसॉल्व कर दो. डिसॉल्व करना वो एक प्रॉपर्टी है. सॉल्ट सॉल्युबल है, सैंड सॉल्युबल नहीं है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है. केमिकल प्रॉपर्टी में देख लें कि केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होगा, एक पर्टिकुलर एलिमेंट रिएक्शन करेगा, दूसरा पर्टिकुलर रिएक्शन नहीं करेगा, तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि हम ओर्स की बात करते हैं, सल्फाइड ओर्स, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं फ्लोटेशन मेथड के थ्रू, बट बाकी ओर्स को हम सेपरेट ऐसे नहीं कर सकते. तो यहाँ सेपरेशन किस पर डिपेंड करेगा, प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करेगा. बट लैंथेनॉइड कॉन्ट्रिक्शन क्या हो रहा है, इनमें तो प्रॉपर्टीज सेम है, तो लैंथेनॉइड्स को सेपरेट करना क्या इजी होगा, यहाँ इजी नहीं होगा. इसीलिए क्वेश्चन आता है कि सेपरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स इट इज क्वाइट डिफिकल्ट. ओके, क्यों है डिफिकल्ट, बिकॉज द प्रॉपर्टीज आर सेम. सो दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आफ्टर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रिक्शन, now we will see the chemical properties. So in chemical properties you see first reaction with oxygen. तो ये आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन क्या करेगा, when lanthanoids these are burned in air they form Ln2O3 type oxides. ठीक है, ये हो गई रिएक्शन विद ऑक्सीजन. देन रिएक्शन विद एसिड, तो जब एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, सिंस दीज आर मेटल, और मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगा, ये सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा. ये है प्रॉपर्टी रिएक्शन विद एसिड में. थर्ड प्रॉपर्टी रिएक्शन विद हेलोजन, तो हेलोजन के साथ ये ऑक्साइड तो बना रहा है, बट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिख रहा है, +3. तो ये है इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट. सो हम ये लिख सकते हैं लैंथेनॉइड्स. लैंथेनॉइड में कौन सा, कोई भी लैंथेनॉइड हम लेते हैं, सपोज हम सेरियम लेते हैं, तो सेरियम की Cl2 से रिएक्शन कराओगे, ये बनाएगा CeCl3. ये इसका ऑक्साइड आपको हैलाइड मिलेगा, तो ये LnX3 टाइप हैलाइड बनाएंगे. दीज आर आयोनिक. रिएक्शन विद वाटर, तो वाटर के साथ रिएक्शन करके ये हाइड्रोक्साइड बनाएंगे. ये देख सकते हैं केमिकल इक्वेशन में, केमिकल इक्वेशन में क्या है, रिएक्शन विद वाटर, तो ये क्या बना रहा है, हाइड्रोक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है. अगेन दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. मेटल क्यों, क्योंकि जब हमने सोडियम और वाटर की रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनाता है, बेस एंड हाइड्रोजन गैस. तो ये देखो बेस और हाइड्रोजन गैस ही तो बन रहा है, तो ये हो गया इसका बेसिक नेचर. तो लैंथेनॉइड्स कैसे हो गए, बेसिक नेचर के हो गए. जब इसकी रिएक्शन कार्बन से कराएंगे तो कार्बाइड बनाएगा LnC2 टाइप का, और नाइट्रोजन से रिएक्शन कराएंगे तो
नाइट्राइड बनाएगा। इस नाइट्राइड में भी एविडेंस हमें मिल रहा है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का। एंड आफ्टर नाइट्राइड अब हम देखेंगे लास्ट सल्फर के साथ, तो सल्फर के साथ भी है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। सो इन सब ये हो गई इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कि कौन कौन सा कैसा कंपाउंड बनेगा। ओके, सो दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ वी विल सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एक्टिनॉइड्स। तो ये हम देख सकते हैं एक्टिनॉइड्स, इनमें आप कन्फिग्रेशन देखिए। पहले एलिमेंट के नाम हम आपको बता देते हैं, एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम, लॉरेंशियम, ये इनके एलिमेंट्स हैं। अब इनमें आपको समझना क्या है, समझना ये है कि इनका कन्फिग्रेशन, मेटल का कन्फिग्रेशन आप देख सकते हैं ग्राउंड स्टेट में ये 2 आयन बना रहे हैं। कौन कौन से आयन? +3 एंड +4 आयन्स। तो +3 और +4 आयन में कन्फिग्रेशन देखना कि स्टेबल कब होगा। एक्टिनियम ये +3 में स्टेबल है क्योंकि इसका कन्फिग्रेशन क्या दिख रहा है हमको 4f0। थोरियम +4 में स्टेबल है क्योंकि इसका कन्फिग्रेशन क्या दिख रहा है 4f0। फिर हम बात करें 5f7 क्यूरियम, इसका कन्फिग्रेशन स्टेबल दिख रहा है, लेकिन बर्केलियम में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल दिख रही है। ऐसे ही हम बात करें लॉरेंशियम की, तो लॉरेंशियम में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल दिख रही है। तो ये टोटल जो हम स्टेबिलिटी की बात करें, ये स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करेगा? कन्फिग्रेशन का, कन्फिग्रेशन पर डिपेंड करेगा। तो इसमें 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलेंगी। पहली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3, और दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4। ओके, तो ये हो गया एक्टिनॉइड्स का ऑक्सीडेशन स्टेट। और हम देखें रेडियाई की, तो फिर से रेडियाई देखो आप 103, 101, 100, 99, 99, 98, 98, कितना डिक्रीज हो रहा है? बहुत कम डिक्रीज है। फिर से इसको हम कहेंगे एक्टिनॉइड कॉन्ट्रिक्शन। वहाँ लैंथेनॉइड में हुआ था ये केस स्मॉल डिक्रीज, यहाँ स्मॉल डिक्रीज एक्टिनॉइड्स में है, तो इसको हम कहेंगे एक्टिनॉइड कॉन्ट्रिक्शन। आयंस में ये आप देखो 96 कितना डिक्रीज हो रहा है? ऑलमोस्ट सेम डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए लैंथेनॉइड कॉन्ट्रिक्शन वैसे होगा एक्टिनॉइड कॉन्ट्रिक्शन। यहां हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की। देयर इज अ ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट which is in part attributed to the fact that 5f, 6d and 7s levels are of comparable energies। 5f, 6s, 6d और 7s इन तीनों की एनर्जी क्या है? ऑलमोस्ट सेम है। तो जब सेम एनर्जी होगी इन सबके इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ही ज़्यादा वेरी करेगी। ओके, तो इनमें हम कंपेयर करें लैंथेनॉइड से, तो लैंथेनॉइड से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें मिलेगी? एक्टिनॉइड्स में। एक्टिनॉइड्स दे शो जनरल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द सीरीज फ्रिक्वेंटली एग्जिबिट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये देखिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहां से आप कंक्लूजन निकालो कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। हमने लैंथेनॉइड्स में देखा था सिर्फ और सिर्फ +3 और +4 तक ऑक्सीडेशन स्टेट हमको मिली है, बट इसमें +5, +6, +7 ये भी ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती हैं। तो जब इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी तो केमिकल रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी? केमिकल रिएक्टिविटी एक्टिनॉइड्स की ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब एक्टिनॉइड्स ये ज़्यादा कंपाउंड बनाएंगे एज कंपेयर टू लैंथेनॉइड्स। रीज़न क्या होगा कि लैंथेनॉइड में से +2, +3, +4 ये 3 ही ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है, बट इनमें +3, +4, +5, +6, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी मिलेगी। तो ये इस ऑक्सीडेशन स्टेट का हमारे पास कंसेप्ट हो जाएगा। हम देखें कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक, द फाइनली डिवाइडेड एक्टिनॉइड्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, इनको आप रिएक्टिव मेटल क्यों है? सीधा सा रीजन है कि इन सब, एक तो साइज बहुत बड़ा है, साइज बड़ा होने से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, तो इसलिए रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। द कॉन्ट्रैक्शन इज हाउएवर ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट इन दिस सीरीज
रिजल्टिंग फ्रॉम पुअर शिल्डिंग इफेक्ट बाय 5f इलेक्ट्रॉन्स। वही हमने लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बात किया, ऐसे ही एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे। द एक्शन ऑफ बॉइलिंग वाटर ऑन देम फॉर एग्जाम्पल गिव्स अ मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। देखो इसमें हम बात कर रहे हैं ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। जबकि आप मेटल को वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलेगी, पर वहां पर क्या मिलेगा, हाइड्रोक्साइड और उसके साथ ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, ये डिफरेंस आ रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अटैक्स ऑल मेटल्स बट मोस्ट आर slightly affected by nitric acid owing to the effect owing to the formation of protective oxide layers. Alkalis have no action. अब देखो इसमें HCl, जैसे हमने एक एल्यूमिनियम की बात की थी, 10th में एक क्वेश्चन था कि एल्यूमिनियम के जो कंटेनर हैं उनमें एसिड का इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है एसिड का इफेक्ट? रीज़न ये है कि एल्यूमिनियम ये एयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है। तो एल्यूमिनियम की जो भी हमारे पास बर्तन है, जो भी कंटेनर है, उसमें चारों तरफ लेयर बन जाएगी किसकी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर इनर्ट होती है। तो इस पर एसिड का कोई अटैक, कोई रिएक्शन नहीं होगा। एसिड से कौन सेव कर रहा है, ये ऑक्साइड लेयर सेव कर रही है। वैसे ही हमारे पास एक्टिनॉइड्स में ये इफेक्ट होता है। एक्टिनॉइड्स मेटल को आप ओपन छोड़ दीजिए, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बना लेंगे और ये ऑक्साइड इनको फिर प्रोटेक्ट करेगी। तो एक प्रोटेक्शन, जैसे पेंट कर देते हैं ना, पेंट करने से बाहर वाला वाटर का इफेक्ट नहीं पड़ता, वैसे ऑक्साइड की लेयर यदि बन गई तो फिर एसिड का इफेक्ट नहीं होगा। एक्टिनॉइड्स आर मोर रिएक्टिव देन लैंथेनॉइड्स ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो साइज तो इंक्रीज हो ही रहा है, साइज इंक्रीज होने से आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इनकी रिएक्टिविटी तो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स बहुत ही सिंपल से हैं, इनमें ज़्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं है। एंड अगेन यू हैव कंफ्यूजन, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, आफ्टर दैट नाउ वी विल सी द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। आफ्टर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, now we will see difference between lanthanoids and actinoids. So lanthanoids, they have less tendency towards complex formation and actinoids have a stronger tendency. reason है कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट lanthanoids से +2 +3 +4 दिखा रहा है, बट actinoids +3 +4 +5 +6 +7 ये भी दिखा रहे हैं। lanthanoid में एग्जैक्ट प्रोमेथियम ऑल आर नॉन रेडियोएक्टिव। इस पॉइंट को नोट कर लेंगे, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच लैंथेनॉइड इज रेडियोएक्टिव? क्वेश्चन इज विच लैंथेनॉइड इज रेडियोएक्टिव एंड द आंसर इज प्रोमेथियम। इसको नोट डाउन कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑल द एक्टिनॉइड्स आर रेडियोएक्टिव। लैंथेनॉइड्स ये ऑक्सोकैटायन नहीं बनाते, एक्टिनॉइड्स ये ऑक्सोकैटायन बनाएंगे। एंड लैंथेनॉइड देयर ऑक्साइड्स आर और हाइड्रोक्साइड्स आर लेस बेसिक, एक्टिनॉइड्स ये मोर बेसिक हैं। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। ओके, सो आफ्टर, so that's all for today's discussion. If you have doubt, you can contact me. Okay, thank you very much.